মিলনপল্লী 1 নম্বর রোড, শিলিগুড়িতে বাড়ি। আমার স্ত্রী দীর্ঘদিন যাবৎ এই ওয়েট প্রবলেম নিয়ে ভুগছে। এর থাইরয়েড ছিল, অনেকদিন আগে থেকেই থাইরয়েড ছিল। তারপরে ওর একটা হিস্টেক্টমি অপারেশন হয় 30 বছর আগে। তারপর থেকেই ওর সাইড এফেক্ট হোক আর যাই হোক, ও দিন দিন ওজন বাড়তে থাকে এবং এমন অবস্থা দাঁড়ায় হাঁটা চলা বন্ধ হয়ে যায়। 110 কেজি পর্যন্ত ওজন হয়েছিল। তা সেই ট্রিটমেন্ট করার জন্য আমরা খুব ছোটাছুটি করেছি। কাছাকাছির মধ্যে কোনো ব্যবস্থা ছিল না, হয় কলকাতা নয় বাঙ্গালোর না চেন্নাই যেতে হবে। কিন্তু ওর পায়ের এমন অবস্থা, এই ওয়েটের জন্য দুটো হাঁটুই আর্থারাইটিসে ক্ষয় হয়ে গেছে, দাঁড়াতে পারতো না, হাঁটতে তো দূরের কথা। তা সেই অবস্থা তাকে কেমন করে বাইরে আমি নিয়ে যাব? মানে ফ্লাইটে নিয়ে গেলেও তো তাকে সিঁড়ি দিয়ে উপরে প্লেনে উঠতে হবে। তখন আমরা খুব দিশাহারা হয়ে পড়ি। তারপরে আমরা বিভিন্ন জনের কাছে এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতে যাই। ডক্টর শঙ্কর সেন ওনাকে দেখে, ওর থাইরয়েড আছে, ইউরিক অ্যাসিড আছে, ব্লাড সুগার আছে, প্রেশার আছে, ইউরিন প্রবলেম আছে। এগুলো সবই নাকি এর এই কারণেই ওয়েটের জন্য আরো হয়েছে। ডক্টর সেন তখন রেফার করেন ডক্টর BK সিনহার কাছে। বলি উনি এখন নেউটিয়াতেই আছেন, নেউটিয়ায় বসছেন, আপনি ওনার সঙ্গে আলোচনা করুন, দেখুন যদি উনি কিছু করতে পারেন। আমার মনে হয় এইটাই আগের দরকার, ওনার ওয়েটটা লস করানো। তারপরে হাঁটুর ব্যাপারটা পরে চিন্তা করা যাবে। তারপর আমরা ওনার সঙ্গে যোগাযোগ করি। যোগাযোগ করার পর গত সোমবারের আগের সোমবার সেই দিন ওনার এই বেরিয়াট্রিক সার্জারিটা হয়। আজকে মোটামুটি 8 দিন থেকে 8 দিনের পর 9 দিনের পর আজকে পূর্ণ হয়েছে। আজকে ফার্স্ট চেক আপের জন্য এসেছি। এর আগে ক্যাথিটার খুলে দেওয়া হয়েছিল, আজকে ড্রেন পাইপটাও খুলে দেওয়া হলো। এখন আগের থেকে ও অনেকখানি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে। ওয়েটও 10-11 কেজি প্রায় কমেছে। এখন চলাচল করার ক্ষেত্রেও অনেকটা সুবিধা হয়েছে। আগে যেমন উঠতেই পারতো না, গাড়ি বসে পড়লে আর ওঠার ক্ষমতা ছিল না। এখন উনি ডাক্তারের চেম্বারে যে এসছেন, এখন ওই হুইল চেয়ার থেকে নেমে হেঁটে উনি ডাক্তারের কাছে উঠলেন এবং বেডে যে শুয়ে ডাক্তারবাবু এক্সামিন করলেন সেটা নিজের চেষ্টাতেই উনি উঠেছেন। আমার মনে হয় আর কিছুদিন গেলে উনি আরো স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করবেন এবং চলাফেরাও সুবিধা হবে। ये जो मुनमुन दत्ता पेशेंट है वो सुपर ओबेस कैटेगरी की पेशेंट है। यूजुअली BMI मोर देन 40 विथ कोमॉर्बिडिटी को हम लोग मॉर्बिड ओबेसिटी कहते हैं, और BMI 50 से अबव सुपर ओबेस कहते हैं। तो ये सुपर ओबेस कैटेगरी की पेशेंट थी। वो चल नहीं सकती थी। 100 यूनिट ऑफ इंसुलिन इसका पर डे का रिक्वायरमेंट था। ब्लड प्रेशर की 2-2, 3-3 दवाइयां लेती थी। रात में बिना बाईपैप के सो नहीं सकती थी, बिकॉज स्लीप एपनिया होता था। रात में उसकी सांस अटक जाती थी ओबेसिटी के कारण। बैठे बैठे सो जाती थी, दिन में भी बैठे बैठे सो जाती थी। जो सारा कंडीशंस जो है वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अंतर्गत आता है। तो ये फीचर्स इतने काफी कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम्स थे जिसका ऑपरेशन के बिना दूसरा कोई रास्ता नहीं था। इन्होंने बहुत ट्राई किया अपने से वेट रिड्यूस करने का, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो वेट फिर से रिगेन करता था, फिर से वेट बढ़ जाता था। अल्टीमेटली इन्हें पता चला, ये मेरे OPD में आई। मैं इनको सजेस्ट किया कि बेरियाट्रिक सर्जरी के लिए जाएं। बेरियाट्रिक सर्जरी बहुत डिफरेंट, बहुत तरह के होते हैं, लेकिन ये बेरियाट्रिक सर्जरी जिसको लेप्रोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी कहते हैं वो बहुत फिजियोलॉजिकल है। उसमें कुछ इंटेस्टाइन में फेरबदल नहीं करते हैं। और अब तो बहुत सारी डाटा आ गई है कि इसका एफिकेसी डायबिटीज पे और ब्लड वेट लॉस पे इज इक्वल टू गैस्ट्रिक बाईपास। तो मैं इनको दोनों ऑप्शन सजेस्ट किया था, लेप्रोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी या लेप्रोस्कोपिक गैस्ट्रिक बाईपास। इन्होंने ऑप्ट किया था लेप्रोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी, बिकॉज फिजियोलॉजिकल है, कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं है लाइफ लॉन्ग। लेकिन लैप गैस्ट्रिक बाईपास में लाइफ लॉन्ग आपको सप्लीमेंट्स, विटामिन और आयरन की सप्लीमेंट्स की जरूरत होती है। द ऑपरेशन वेंट वेरी वेल। इन्होंने लैप स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी ऑप्ट किया। ऑपरेशन बहुत ही अच्छे ढंग से हुआ। और सबसे मिरेकलस है कि ऑपरेशन के तुरंत बाद
इनका बाईपैप का जरूरत खत्म हो गया, रात में बाईपैप का जरूरत नहीं पड़ा और बहुत अच्छी नींद आई। वैसे ऑपरेशन से पहले ये इनकी बिना बाईपैप के बहुत डिफिकल्ट रातें होती थी, ये सो नहीं पाती थी, ये उठ उठ के बार बार बैठ जाती थी या सांस लेने में दिक्कत शुरू हो जाता था। लेकिन ऑपरेशन के तुरंत बाद इनमें सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ कि इनकी बाईपैप की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई और रात की नींद अच्छी हो गई। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था, जो 100 यूनिट ऑफ इंसुलिन का रिक्वायरमेंट पर डे था, वो 100 यूनिट ऑफ इंसुलिन की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई इनकी। और जब ये पहली विजिट में आई तो शी वॉज ऑफ इंसुलिन, कोई इंसुलिन की इनको जरूरत नहीं थी। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि जो फर्स्ट विजिट में वो लौट कर के आई तो इनका वेट लॉस करीब 10 केजी हो चुका था। तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट अचीवमेंट था उनके लाइफ का, क्योंकि जो पेशेंट अपने व्हील चेयर से उठ के नहीं चल पा रहा था, वो पेशेंट सर्जरी के बाद पहले विजिट में, जो ऑपरेशन के बाद का पहला विजिट होता है ओपीडी में, उसमें वो पेशेंट अपने व्हील चेयर से उठ के चल पा रही थी। तो ये एक दर्शाता है कि पीडियाट्रिक सर्जरी अभी भी सबसे इफेक्टिव मोस्ट ट्रीटमेंट है फॉर द ओबेस पेशेंट जिसके पास बहुत सारा कोमोर्बिडिटीज है। दूसरा, जब आप वेट लॉस करने की कोशिश करते हो तो आप इंच लॉस करते हो। इंच लॉस इज नॉट इक्विवेलेंट टू वेट लॉस। इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। इंच लॉस कभी भी वेट लॉस के इक्विवेलेंट नहीं होता है। इंच लॉस कैन कम बैक वेरी सून। वेट लॉस जो है वो डिपेंड करता है कि अगर पीडियाट्रिक सर्जरी के कारण वेट लॉस है तो वो सस्टेनेबल है, वो रहेगा, वो तुरंत लौट करके नहीं आने वाला है। लेकिन जब आप अपने से कोशिश करते हो वेट लॉस करने का, उसको सस्टेन नहीं कर पाते हो, तो वो वेट लॉस जो है डबल मोड में लौट करके आता है। तो मेरा कहना है कि पीडियाट्रिक सर्जरी, पहले लोग के समझ में ये नहीं था कि ओबेसिटी भी एक बीमारी है, लेकिन आज के दशक में 2000 के एरा में लोगों के समझ में ये बात आने लगी है कि ओबेसिटी एक बहुत बड़ी बीमारी है, जिसके कारण उससे एसोसिएटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जिसका सॉल्यूशन पीडियाट्रिक सर्जरी है। थैंक यू।